Hello, my dear children. Welcome back to the knowledge series by Amit Publishing House. Children, my name is Vandana and we are doing book 8. This is a science book and the name of your book is Science Horizon, Inspiring Tomorrow's Innovators. So let's start a new chapter today. This is chapter number 2 of your book and the name of the chapter is Microorganisms, Friend and Foe. So in this chapter, we are going to learn about the classification of microorganisms, harmful microorganisms, food preservation, useful microorganisms, and where do microorganisms live. Many living organisms are present in soil. तो soil में काफी सारे organisms हैं जो present हैं, and water and air around us. तो soil, उसके अलावा water और air में भी ये present है. Some of these organisms are so small that we cannot see them with naked eye. इनमें से कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि हम अपने naked eye से खुली आंखों से इन्हें नहीं देख सकते. We need a magnifying instrument called microscope to see these extremely small organisms. So इनको देखने के लिए हमें magnifying instrument की जरूरत होती है. These extremely small organisms are known as microorganisms. And we can now say that those organisms which are too small to be seen without the microscope is called microorganism. So अब हम इस conclusion पे आ सकते हैं कि माइक्रोस्कोप से जिन चीजों को हम देख सकते हैं वो उन्हें माइक्रोऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, उनके बिना हम जिन्हें नहीं देख सकते वो भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. Thus they cannot be seen with the naked eyes. They can be seen only with the help of microscope. So इन्हें हम naked eye से खुली आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं. Though we cannot see the microorganisms around us, we become aware of the presence of them. So हम इन्हें देख नहीं सकते लेकिन हम इन्हें महसूस जरूर कर सकते हैं, हम अपनी इनकी प्रेजेंस को समझ सकते हैं through their actions like spoiling our food. ये हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं और हमें बीमार कर देते हैं. तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास ही हैं. Thus some of the microorganisms are harmful to us. कुछ हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा harmful हैं. The microorganisms like certain bacteria and fungi make our food go bad. So कुछ बैक्टीरिया और फंगी हमारे फूड को खराब कर देते हैं. The microorganisms also cause disease in humans. ये humans में disease भी spread out करते हैं. Other animals and plants, दूसरे animals और plants में भी. The diseases like common cold, malaria, skin infection, typhoid, TB, and tetanus, cholera, measles, chickenpox, smallpox, and AIDS, etc. All are the cause of the action of the various types of microorganisms. So ये सब जो है microorganisms की वजह से ही होते हैं. Some of the microorganisms grown on our food are caused and cause food poisoning. इनमें से कुछ जो है हमारे फूड के ऊपर ग्रो करते हैं और हमें जो बीमार कर देते हैं, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है. Some of the microorganisms are also useful to us. For example, the microorganisms like certain bacteria help in making food products such as curd and cheese. So कुछ microorganisms हैं वो हमारे लिए काफी ज्यादा healthy हैं. ये help करते हैं कर्ड और चीज बनाने में. These are also useful in making bread, cake, pastry, alcohol, acetic acid which is vinegar, and medicine called antibiotics. So ये सारी चीजें ये microorganisms help करते हैं हमें बनाने में. Some microorganisms decompose the organic waste of dead plants and animals into simple substances and clean up the environment. So कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास सफाई पैदा कर देते हैं. अब ये क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन्हें डिकम्पोज कर देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटीरियल्स लाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन इन नेचर. ये जो भी मटीरियल्स हैं उन्हें रिसाइकल भी करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, कैसे इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं. There are 4 main groups of these and they are bacteria, fungi, protozoa and algae.
Viruses are also considered as microorganisms. Viruses को भी consider किया जाता है and they are considered different from the other microorganisms. इन्हें दूसरे microorganisms से अलग माना जाता है as they reproduce only in the body of the host. क्योंकि ये क्या करते हैं, जो बॉडी है होस्ट की वहीं पे ये रिप्रोड्यूस करते हैं. They reside in the plants, animal, bacteria, etc. ये प्लांट्स के बैक्टीरिया या फिर एनिमल्स के अंदर रहते हैं. Many microorganisms are harmful, while some of the microorganisms are useful to us in one way or the other. So कुछ तो बहुत harmful है लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा useful हैं. A small fraction of the microorganisms may cause disease. Such disease-causing microorganisms are called germs or pathogens. So ऐसे microorganisms जो हमें बीमार करते हैं उन्हें germs या फिर pathogens कहा जाता है. Washing your hands before any meal means that you are removing the germs or pathogens sticking to your hands and thus keeping the disease away. So अगर हमने खाने से पहले अपने hand को wash कर दिया तो क्या होगा, हम इन पैथोजेंस या फिर जर्म्स को जो है अपने हैंड से हटा रहे हैं और डिजीज को दूर भगा रहे हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट देम. द फर्स्ट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स बीइंग जस्ट अ फ्यू माइक्रोमीटर इन लेंथ. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैव डिफरेंट शेप्स. सो ये जो है कुछ इनकी लेंथ काफी कम होती है लेकिन ये अलग अलग शेप्स के होते हैं. They are found mainly in the 4 types of shapes. ये 4 shapes में जाने आते हैं and they are rod shape which is bacilli, spherical shape which is cocci, curved shape which is commas and the spiral shape which is spirally. Here you can see the picture of these. Next is fungi. They are long thread-like unicellular multicellular microorganisms and the thread of the multicellular fungi are called hyphae. So ये जो है थ्रेड के जैसे होते हैं और इनके थ्रेड वाले जो फंगी होते हैं उन्हें हाइफे कहा जाता है. द फंगस इज नीदर अ प्लांट नॉर एन एनिमल. ना तो ये कोई प्लांट है और ना ही कोई एनिमल है. इट इज सिमिलर टू अ प्लांट. प्लांट जैसा होता है बट इट हैज नो क्लोरोफिल. इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है. तो ये क्या करता है, ये अपना फूड नहीं बना पाता जिसकी वजह से और दूसरे प्लांट्स या दूसरी चीजों पे ही ये डिपेंड रहता है फूड के लिए. The two main clauses of fungi are saprophytes and parasites. So इनको 2 categories में divide किया गया, saprophytes and parasites. The saprophytes feed on decaying organic matter. जो सड़ा हुआ decay करता हुआ organic matter उस पे ये जो है क्या करते हैं, grow करते हैं. And the parasites feed on the body of living organisms. लेकिन जो जीवित लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, उनकी बॉडी पे ये पैरासाइट्स ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर फंगस इज यीस्ट एंड मल्टीसेलुलर फंगस इज पेनिसिलियम एस्पैरागस, ब्रेड मोल्ड्स एंड मशरूम एक्सेट्रा. Here you can see the picture of all these fungus. Now the next is protozoa. They are unicellular organisms, have the size ranging from 2 to 200 microns. इनका जो साइज है 2 से 200 माइक्रोन तक का हो सकता है एंड दे आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर. ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं एंड दस कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ये अपने फूड को खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स से. ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम. दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. नेक्स्ट इज एल्गी. They are aquatic and photosynthetic microorganisms and they can prepare their own food. ये अपने फूड को खुद से बना सकते हैं. So they come under the category of autotrophic organisms. इसलिए इन्हें autotrophic organism कहा जाता है. They may be unicellular or multicellular. ये या तो 1 सेल के हो सकते हैं या फिर ज्यादा सेल्स के भी हो सकते हैं. Unicellular algae is Chlamydomonas and the multicellular algae is Euglena, blue-green algae, etc. Next is viruses. They are the smallest microscopic organisms. ये सबसे छोटे microscopic organisms हैं and they not come under the category of cellular organisms.
इन्हें जो है सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है. दे डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनेल्स. इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं. these are of 4 types. और ये 4 तरीके के होते हैं: प्लांट वायरस, इंसेक्ट वायरस, बैक्टीरियल वायरस एंड मैमेलियन वायरस. Our mouth is inhabited by 500 to 1000 different types of bacteria. हमारे माउथ में इतने सारे टाइप्स के बैक्टीरियाज हैं. 70 to 80 different types of fungi and few viruses and parasites. So ये सारी चीजें हमारे माउथ के अंदर हमेशा रहती हैं. They are made up of genetic materials found by the protein core. So ये genetic material से बनते हैं जो protein core से surrounded होते हैं. Viruses cannot reproduce on their own. ये अपने आप जो reproduce नहीं करते हैं. For this they need to enter a living host cell. इसके लिए क्या होता है, उन्हें किसी की host cell या किसी की host body में घुसना होता है. Outside the host cell they do not show any characteristic of living organisms. So अगर वो हमारी body के बाहर है तो ये अपनी कोई भी characteristics नहीं show करेंगे. Common ailments like cold, cough and influenza are caused by viruses. ये सब चीजें viruses की वजह से होता है. Serious diseases like polio and chicken pox are also caused by virus. So कुछ serious diseases हैं वो भी इनकी वजह से ही होता है. Where do microorganisms live? ये कहाँ रहते हैं? Microorganisms can survive under all types of environment, ranging from icy cold climate to hot springs and deserts and marshy lands. So environment चाहे जैसा भी हो, चाहे वो cold हो, चाहे hot हो, चाहे जो है marshy हो, हर जगह ये survive कर सकते हैं. They are also found inside the body of animals including humans. ये हम humans और animals की body के अंदर भी पाए जाते हैं. Some microorganisms grow on other organisms while other freely exist. So कुछ तो ऐसे हैं जो दूसरों पर ग्रो करते हैं, दूसरे के ऊपर, बाकी जो कुछ है वो फ्री रहते हैं. Some are also found in dead and decaying organic matter. और कुछ जो है उन्हें dead और decaying organic matter में ही पाया जाता है. Microorganisms like amoeba can live alone. Amoeba एक ऐसा microorganism है जो अकेले रह सकता है, while fungi and bacteria are found mostly in colonies. लेकिन ये जो fungi और bacteria इन्हें ज़्यादातर हम ग्रुप्स में ही या कॉलोनीज में ही देखेंगे. यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. अब कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन नेचर व्हिच इंक्लूड बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी एंड वायरस. सो इनके कुछ नेम यहाँ दिए गए हैं. These microscopic organisms are important to nutrient recycling in all types of ecosystem. So ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिएंट साइकिल में हमारे इकोसिस्टम के लिए, सिंस दे एक्ट एज अ डिकम्पोजर, क्योंकि ये डिकम्पोजर्स का काम करते हैं. ड्यू टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवेयर माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर वाइडली यूज्ड इन मेनी एरियाज. सो इनके डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए इन्हें काफी ज्यादा एरियाज में यूज किया जाता है. बट दे आर ऑल्सो हार्मफुल एंड कॉज सीवियर डिजीज. सो ये जो है हमारे लिए हार्मफुल भी और बहुत सारी बीमारियों को भी हमारे अंदर पैदा करते हैं. सम ऑफ द यूजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर एज फॉलोज. कुछ यूजेस दिए गए हैं. फूड प्रोडक्शन. सो फूड प्रोडक्शन में भी ये यूज किए जाते हैं. पहला है कर्डलिंग ऑफ मिल्क. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड कर्डलिंग ऑफ मिल्क. सो कर्ड को बनाना मिल्क से, इसे ही कर्डलिंग कहा जाता है. माइक्रोऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलम grows in milk to convert into curd. So ये जो बैक्टीरिया है ये जो है मिल्क में ग्रो करता है जिससे वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. ड्यूरिंग द ग्रोथ द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलम लियस प्रोड्यूसेस एन एसिड कॉल्ड लैक्टिक एसिड. ये एक एसिड बनाता है जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फ्रॉम द लैक्टोज प्रेजेंट इन द मिल्क. सो मिल्क में पहले से लैक्टोज होता है जिससे ये कन्वर्ट करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और इसके बाद जो दूध है वो कर्ड में कन्वर्ट होने लगता है. दिस लैक्टिक acid then coagulates
and partially digest the milk protein. अब जब थोड़ा थोड़ा करके मिल्क के प्रोटीन को खा जाता है. A small amount of curd added to the fresh milk. अगर fresh milk में हम थोड़ा सा curd add कर दें as inoculate or starter contain millions of bacterium lactobacillus which at suitable temperature multiply this converting milk into curd. So suitable temperature इसे चाहिए warm temperature चाहिए जिसपे ये बैक्टीरिया जो ग्रो करता है और धीरे धीरे ये पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. दिस ऑल्सो इम्प्रूव्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग B12 विटामिन B12. और जब ये मिल्क कर्ड बन जाता है तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी वो भी इम्प्रूव हो जाती है जिसमें विटामिन B12 है. मेकिंग चीज. डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड पनीर आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बैक्टीरिया. सो कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि चीज और पनीर, इन्हें भी बैक्टीरिया से ही यूज किया जाता है जिससे ये बनाया जाता है और इसमें भी सेम बैक्टीरिया यूज किया जाता है. ऑल्सो एक और बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस के जगह पे एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस. द सब्सटेंस कॉल्ड रेनेट इज ऑल्सो एडेड टू मेक द प्रोसेस फास्टर. सो अब इसमें एक सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसका नाम है रेनेट जिससे प्रोसेस जो है जल्दी हो जाता है. रेनेट इज अ सब्सटेंस यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टमक लाइनिंग ऑफ यंग कैटल. सो जो यंग कैटल है उनकी स्टमक लाइनिंग से ये सब्सटेंस मिलता है. रेनेट एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. ये जो है लैक्टिक एसिड को प्रेजेंट करता है, फॉर्म करता है विच मेक्स द मिल्क मोर एसिडिक जिसकी वजह से जो मिल्क है काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है. Different varieties of cheese available in the different countries are also known as characteristic by their texture and flavor and taste. So अलग अलग countries अलग अलग तरीके के चीज को प्रोड्यूस करती हैं. कैसे वो जाने जाते हैं अपने अलग अलग टेस्ट, फ्लेवर और टेक्सचर के लिए जाने जाते हैं. The specificity comes from the microorganisms used. किस तरीके के माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज किए गए हैं उसके हिसाब से उस चीज को स्पेसिफाई किया जाता है. For example, the large holes in Swiss cheese. Swiss cheese जो है इसमें बड़े बड़े holes होते हैं and due to the production of large amount, क्योंकि इस चीज में जो है काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा. सो बैक्टीरिया क्या करता है काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है इस चीज में जिसकी वजह से इस बैक्टीरिया का नेम दिया गया है प्रोपियोनी बैक्टीरिया Shermani. Here you can see कि बिग होल्स जो है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो होल्स जो है जनरेट हो जाते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है होल्स अपनी जगह पे आ जाते हैं. नेक्स्ट इज मेकिंग ब्रेड. Yeast is also used in the process of making bread, cake, pastry and other similar food products. So yeast से हम ये सारी चीजें बनाते हैं. Now let us see how it is done. Yeast is first added to the mixture of flour. मैदे में yeast को मिलाया जाता है. एक सॉफ्ट डो को हमने तैयार किया. उसके बाद डो को जो है 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है. डो इज राइज टू द वॉल्यूम. डो जो है ऊपर उठता है, एक वॉल्यूम आती है उसमें. अब जब आप देखोगे इस डो को टच करोगे तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जिसकी वजह से यहाँ पे भी ऐसे बिग होल्स आपको दिखाई देने लगेंगे इस डो में. द बबल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. ये जो बबल्स है कार्बन डाइऑक्साइड है कि वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते डो के. द रेज्ड डो इज देन फाइनली बेक. अब इस डो को जो है बेक कर दिया जाता है. While baking, the carbon dioxide escapes, making the dough porous and spongy. और जब हम इसे बेक करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है निकल जाता है इसमें से जिससे जो ये डो है पोरस और स्पॉन्जी बन जाता है. Making puffed up dough for some other food items. So कुछ food items हैं उनके लिए puffed up dough कैसे बनता है. Have you ever seen the tiny holes of idli and dosa? Such holes are created by the escape of carbon dioxide for the dough for which they are prepared. Yeast and the microorganisms which are used to create the puffed up dough for such items. Yeast cell release carbon dioxide and they actually aid in raising the dough.
सो अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईस्ट में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डो को पफ कर देते हैं, मीन्स फुला देते हैं, और ईस्ट के जो सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से डो जो है ऊपर उठ जाता है। फर्मेंटेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, some food items such as fish, soybean, bamboo shoot etc. are fermented and eaten in some countries. So कुछ जगहों पे इन सारी चीजों को फर्मेंट किया था फिर उसे खाया जाता है। Such fermentation is done with the help of microorganisms, और इस fermentation को भी microorganisms से ही किया जाता है। Next is commercial use. Fermentation of natural sugar to produce alcohol. So alcohol बनाने के लिए भी शुगर को फर्मेंट किया जाता है। The process of converting sugar into alcohol in the absence of oxygen is called fermentation. So ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब शुगर को फर्मेंट किया जाता है इसे ही जो है फर्मेंटेशन कहते हैं। Yeast is used on a large scale production of alcohol. ईस्ट को जो है यूज किया जाता है अगर काफी ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल को प्रोड्यूस किया जा रहा है, वाइन को प्रोड्यूस किया जा रहा है या बियर को प्रोड्यूस किया जा रहा है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स। सो इन सारी चीजों के लिए जो ईस्ट है उसे जो है ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। सो इन सारी चीजों में ईस्ट को मिलाया जाता है और उसके बाद जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। In the absence of oxygen, the yeast cell grow and convert natural sugar present in grains and fruit into alcohol. So ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये जो नेचुरल शुगर है वो इन सबको जो है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड एंड विनेगर। द सिट्रिक एसिड व्हिच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फंगस एस्पेरिगस। सो ये जो सिट्रिक एसिड है जहाँ जो हम काफी ज्यादा अपने कोल्ड ड्रिंक में पीते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं उसमें यूज होता है, ये भी जो है फंगस एस्पेरिगस से बनता है। विनेगर कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया लाइक एसिटोबैक्टर ऑन अल्कोहल। सो ये जो विनेगर है इसे भी जब बनाया जाता है तो एसिटिक एसिड को, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इसे बनाया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया से जिसका नाम है एसिटोबैक्टर, जो अल्कोहल पे यूज किया जाता है। मेडिसिनल यूज, अब कुछ मेडिसिनल यूज है इन बैक्टीरियाज का। प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, द मेडिसिन्स दैट किल द और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। सो ऐसे मेडिसिन जो इन बैक्टीरियाज को मार दे, इन्हें भी कुछ बैक्टीरियाज की मदद से बनाया जाता है, कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाया जाता है या फंगी की मदद से बनाया जाता है, और इन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं जो इनसे लड़ने में हेल्पफुल होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कमर्शियल नोन एंटीबायोटिक्स व्हिच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। सो ये भी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो फंगी और बैक्टीरिया से बनती हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म जनरेट हाफ द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, जो भी ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं उसमें उसका हाफ तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स ही जनरेट करते हैं। 60% ऑफ द अर्थ बायोमास इज कंप्राइज्ड ऑफ बैक्टीरिया। जो 60% है अर्थ के बायोमास का, उसमें बैक्टीरियाज। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. So कुछ microorganisms को grow किया जाता है जिससे काफी सारी बीमारियों को cure किया जाता है। In the case of antibiotics, the antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. So animals में जो microbial infection है उन्हें चेक करने के लिए भी इन एंटीबायोटिक्स को उनकी जो फूड है उसमें मिला दिया जाता है। They are also used to control many plant diseases. इन्हें जो है यूज किया जाता है plant diseases को कंट्रोल करने में। The first antibiotic developed was penicillin. जो पहला एंटीबायोटिक बना है उसका नाम है पेनिसिलिन। Next is vaccine, a substance used to produce immunity against disease in a living body is called vaccine.
सो लिविंग बॉडी में इम्यूनिटी को ग्रो करने को ही हम कुछ सब्सटेंस यूज करते हैं, उसे हम वैक्सीन कहते हैं. Vaccines are prepared by using the dead or weakened diseases causing microbes. So वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? जो डेड है या जो वीकेंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनकी मदद से यूज किया जाता है, इन्हें प्रिपेयर किया जाता है. इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज. अब इम्यूनिटी क्या है? एबिलिटी कि कोई किसी डिजीज से कैसे फाइट कर सकता है. इम्यूनिटी कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. जो इम्यूनिटी है वो नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन. अगर आपके अंदर इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं है तो आप इन वैक्सीन से अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय इंजेक्टिंग द वैक्सीन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. और इस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं. सो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, the body produces a substance called antibiotics. So जब जो है disease causing microbes जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो हमारी बॉडी खुद से जो है कुछ substance बनाती है जिसे हम antibodies कहते हैं. Children, this question you have to do on your own. You have to name the microorganisms used in curdling of milk, making of cheese, making cake, producing alcohol, producing vinegar. So इन सब चीजों में कौन से microorganisms यूज किए गए? You have to write their name here. The antibodies fight and destroy the invader. ये antibodies क्या करते हैं? ये fight करते हैं और जो invaders जो है हमारी body में जो घुस चुके हैं उनको भगा देते हैं. They destroy. The body also remembers how to fight the microbes. Body को ये भी पता है कि microbes से कैसे लड़ना है. If it enters against in future as the antibodies remain in the body. सो अब जो है एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी होती है तो उन्हें अगर फ्यूचर में भी कभी ऐसा कुछ होता है तो उन्हें पता है कैसे लड़ना है इनसे. Thus the body produces immunity against the disease. इसीलिए जो बॉडी है ये इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती है डिजीज के खिलाफ. दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. और ऐसे ही ये वैक्सीन वर्क करते हैं. Several diseases including cholera, TB, which is tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccine. So कुछ डिजीजेस के नेम दिए गए हैं जो वैक्सीन से क्योर हो सकते हैं. ये you can see a weakened form of the disease germ is injected into the body. The body makes antibodies to fight these invaders. अब बाहर से कोई चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गई, अब ये जो एंटीबॉडीज है ये इन इन्वेडर्स को हरा रही हैं. If the actual disease germ ever attack the body, the antibodies will return to destroy them. और अगर ये दोबारा से आपने हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये एंटीबॉडीज जो दोबारा से इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ फूड. एल्गी एंड सीवीड्स. Cholera and many seaweeds are used as food supplements in many countries. So इन्हें जो है जो different countries है वहाँ पे as a food supplement भी यूज किया जाता है. They are also the diet source of food and for the aquatic animals. Aquatic animals के लिए डायरेक्ट सोर्स का भी काम करते हैं, फूड के डायरेक्ट सोर्स का भी ये काम करते हैं. Yeast. Mushroom are rich source of protein and vitamins. मशरूम जो है वो रिच सोर्स है विटामिन और प्रोटीन्स का. यीस्ट आर रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन. यीस्ट भी जो है ये विटामिन और प्रोटीन से फुल होते हैं. एंड आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स. सो जो भी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स है उसमें भी इन्हें यूज किया जाता है. कॉमन सेल्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स विच रिसाइड इनसाइड आवर बॉडी आर एंड आर बेनिफिशियल टू अस आर कॉल्ड कॉमन सेल्स. सो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में रहते हैं और हमारी बॉडी को फायदा देते हैं, बेनिफिशियल है हमारे लिए, उन्हें हम कॉमन सेल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस लिव्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन. सो ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है विच हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द फूड वी ईट. जो भी हम फूड खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है. As well as helps in destroying diseases causing microbes too. जो भी disease causing microbes है उन्हें भी destroy ये करता है. Agricultural use. In chapter 1 you have read about the process of nitrogen fixation. Chapter 1 में आपने पढ़ा होगा nitrogen fixation के बारे में.
and this process involves the fixation of atmospheric nitrogen into nitrogen compounds that are suitable for the plants. So अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जो है कैप्चर कर लिए जाते हैं प्लांट्स में, जो इनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं. दिस प्रोसेस हेल्प्स इन द इंक्रीज ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और इसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, एंड एनरिचिंग द सॉइल विथ नाइट्रोजन, और सॉइल को नाइट्रोजन से भर देती है. बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज, सो ये जो बैक्टीरिया होते हैं रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस प्लांट्स के, सच एज बीन, पी एंड ग्राम, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, इन्हें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है. अब आप देख सकते हो रूट नोड्यूल्स में कैसे नाइट्रोजन है जो इन रूट नोड्यूल्स में कैप्चर है. एनवायरमेंटल यूज, क्लीनिंग द एनवायरमेंट. Some microorganisms like bacteria and fungi help in the recycling of waste materials present in the environment. So कुछ microorganisms हैं जो help करते हैं waste material को remove करने में हमारे environment से. This is done by the process of decomposition, और इसे decomposition से ही properly किया जाता है. Which means breaking down of the organic material into simpler organic substance. अब इसमें क्या है, जो organic material उसे simple organic substances में break down किया जाता है. The microbes that help in the process of decomposition are called decomposers. और ये जो microbes हैं जो इस process में help करते हैं उन्हें हम decomposers कहते हैं. Decomposers like bacteria and fungi feed on organic waste. ये organic waste के ऊपर ही रहते हैं, जैसे कि dead plants हो गए या animals हो गए या फिर excreta या फिर feces हो गए. The inorganic compounds released during the process of decomposition include minerals like nitrates, phosphate, potassiuminous and water vapors. So ये जो inorganic compound है उनमें ये सारी चीजें included होती हैं, and carbon dioxide also. All these compounds are used by the plants during the process of photosynthesis. और photosynthesis में ये plants इन्हें use करते हैं. Thus, waste are recycled by microbes, helping in cleaning the environment. So, इस तरीके से जो microorganisms हैं वो जो help करते हैं recycle करने में और environment को clean करने में. It should be noted that the non-biodegradable waste like plastic, tin, polythene, etc. are non-degraded by the microorganisms, so they should be disposed separately. So, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो plastic है या tin है या जो polythene है ये इजीली डिग्रेड नहीं होता है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स इसे डिग्रेड नहीं कर सकते, तो ऐसी चीजों को अलग ही फेंकना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए. ये यू कैन सी ऑर्गेनिक रिच सॉइल, हाउ दिस ऑर्गेनिक रिच सॉइल कन्वर्ट्स, अ ट्री ग्रोज इनटू द सॉइल, देन लीव्स गेट फॉलन ऑन द ग्राउंड, सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, एंड न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर फूड वेयर. अब इसके बाद आप देखो, when some nutrients leach into soil by chemical action and leaves partially consumed by decomposers such as fungi and bacteria, they begin to lose form and become litter. Further decomposition by earthworm, bacteria, soil, mites, fungi, etc. So this is how organic rich soil is made. Sewage treatment. Bacteria are widely used in these days for treatment of sewage. Sewage की treatment के लिए bacteria use किए जाते हैं. Sewage consists of organic waste like household waste, human and animal excreta, factory waste, etc. So sewage में ये सारी चीजें included है. Sewage is treated in sewage treatment plant. Sewage को sewage treatment plant में use किया जाता है in order to make it free from any harmful substance, ताकि ये जो है किसी भी हार्मफुल जो सब्सटेंस है उससे फ्री हो सके. दिस ट्रीटेड सीवेज इज देन अलाउड टू फ्लो इनटू रिवर्स, और इस ट्रीटेड सीवेज को जो है रिवर में फ्लो कर दिया जाता है. ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट अ गैस कॉल्ड बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज कॉमनली यूज्ड एज अ फ्यूल. और इस ट्रीटमेंट में एक गैस रिलीज होती है जिसे बायोगैस कहते हैं, और ये एज अ फ्यूल यूज की जाती है. दिस फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द
which is commonly used as a fuel. इस फ्यूल को जो है प्रोड्यूस किया जाता है जिसे एज अ फ्यूल यूज किया जाता है. दिस फ्यूल इज रिन्यूएबल एंड एज वेल एज इको फ्रेंडली इन नेचर. सो ये जो फ्यूल है ये रिन्यूएबल है, इसे फिर से बनाया जा सकता है और ये इको फ्रेंडली भी है. हार्मफुल माइक्रोब्स, अभी हमने पढ़ा था माइक्रोब्स जो हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम हार्मफुल माइक्रोब्स, microorganisms. So microorganisms are also harmful in many ways. Some of these can cause disease in human being, plants and animal, while others spoil food, clothes and leather. So कुछ जो है हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को या हमें, और कुछ हमारे फूड को, क्लोथ्स को या फिर लेदर को खराब करते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन. अब ह्यूमन में कौन कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं? Microorganisms that cause disease are called pathogens. So ये जो microorganisms हैं जो disease को पैदा करते हैं इन्हें pathogens कहा जाता है. The pathogens enter our body through the air we breathe in. So जो भी हम air में सांस लेते हैं उसके through ये हमारी body के अंदर आ जाते हैं. The water we drink, जो पानी हम पीते हैं, और the food we eat, या जो food हम खाते हैं. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food and physical contact are called communicable diseases. So ये जो चीजें हैं ये spread out होती हैं physical contact से और इन्हें ही हम communicable diseases कहते हैं. वो diseases जो एक दूसरे से फैलती हैं. Example of such diseases include cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis. So कुछ examples दिए गए हैं कुछ diseases के यहाँ पे which are communicable. Transmission of the pathogens take place in the following ways. कैसे ये जो ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी? लेट्स सी. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. सो अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो आपको ये पैथोजेंस अटैक कर सकते हैं. Insect and animals act as a carrier of pathogens. When insect or houseflies sit on the garbage and animal excreta, pathogens stick to their bodies. So, जब ये इंसेक्ट या जो हाउस फ्लाई है ये किसी गार्बेज पे या एनिमल एक्सक्रीटा के ऊपर जाके बैठते हैं तो पैथोजन इनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं. When these flies sit on the uncovered food, और ये जब फ्लाई जाके हमारे अनकवर्ड फूड पे चिपक जाते हैं उस पर बैठते हैं, they transfer the pathogen, ये पैथोजन को हमारे फूड में ट्रांसफर कर देते हैं. Whoever eats the contaminated food is likely to fall ill, और जो भी इस फूड को खाता है वो बीमार पड़ जाता है. Another example of a carrier of pathogen is the female antelope. So, अब दूसरा जो carrier है pathogens का वो है female Anopheles mosquito, which carries the parasite of malaria. ये mosquito क्या करता है? मलेरिया के parasites को अपने साथ carry on करता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया भी हो सकता है. Pathogens release in the air while coughing. जब हमें खांसी होती है तो खांसते समय हम जो भी एयर में जो भी हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं माउथ के वो एयर में सर्कुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से पैथोजेंस एयर में घूमने लगते हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या क्या मेजर्स है जिससे हम इनसे बच सकते हैं? कीप द पेशेंट एंड हिज बिलोंगिंग्स अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स. सो ये जो पेशेंट है और इनकी जो बिलोंगिंग्स है उन्हें दूसरों से दूर रखें. वैक्सीनेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड एट द सूटेबल एज. सो एक सूटेबल एज पे वैक्सीनेशन होनी चाहिए. Drinking water should be boiled. Avoid eating uncovered food stuff. So वो boiled water पीना चाहिए और uncovered food को नहीं खाना चाहिए. Maintaining personal hygiene and good sanitary habits. So personal hygiene को maintain करना चाहिए और good sanitary habits भी use करनी चाहिए. Use mosquito nets and repellents. Mosquito nets और repellents को use करना चाहिए. Spray insecticide and control breeding of mosquito bite, not allowing the mosquito to collect in the surrounding. So insecticide को स्प्रे करो और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मॉस्किटोज जो है ग्रो नहीं करे हमारे आसपास के सराउंडिंग. So here you can see there's a table in which some disease causing microorganisms in humans are mentioned. So कौन कौन सी ह्यूमन डिजीज है, कौन कौन से पैथोजेंस हैं जो इसमें इफेक्टिव और क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिससे ये हमारी बॉडी के अंदर आते हैं. सो फर्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस.
और इसका जो पैथोजन है वो बैक्टीरियम है, एयर से आता है हमारी बॉडी में। मीजल्स एक वायरस है, ये भी एयर से आता है। चिकन पॉक्स ये भी एक वायरस है और ये एयर और फिजिकल कॉन्टैक्ट से आता है विद अ इन्फेक्टेड पर्सन। पोलियो वायरस एयर और वाटर से आता है। कॉलेरा एक बैक्टीरियम है, कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से आता है। टाइफॉइड एक बैक्टीरियम है, ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर से हमारे अंदर आता है। हेपेटाइटिस ए ये एक वायरस है जो वाटर से आता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ है एंड ये एक फीमेल जो मॉस्किटो है उसके बाइट से हमारे अंदर स्प्रेड आउट होता है। नाउ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल्स में भी डिजीज को पैदा करते हैं। Some microorganisms are responsible for disease among animals. Some animal disease caused by pathogens are listed in the table. So here the disease is anthrax and the affected animal is cattle. और कौन है इसमें, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन सा पैथोजन है? बैक्टीरियम। और कैसे आता है ये? ग्रेजिंग से, मीन्स घास फूस खाने से, जब ये ग्रेज करते हैं। फिन रॉट फिश अफेक्ट होती है इससे, बैक्टीरियम या फंगस, और कंटामिनेटेड वाटर या फिर इंजरी की वजह से होता है। फूड एंड माउथ डिजीज कैटल को होता है, वायरस से होता है। एयर एंड कॉन्टैक्ट विद डिजीज एनिमल्स। रिंडर पेस्ट ये कैटल को होता है, एक वायरस है उससे होता है। और एयर कंटामिनेटेड वाटर और कॉन्टैक्ट विद डिजीज एनिमल, सो इन सारी चीजों की वजह से ये होता है। नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। तो अब जो है प्लांट्स में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं? प्लांट्स टू कैन सफर फ्रॉम डिजीज, डिफरेंट डिजीज कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेंस। दीज डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। और इस डिजीज से क्या होता है? क्रॉप जो है खराब हो जाता है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स। और इन्हें जो है कुछ केमिकल्स की मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं, which kill the microbe, जो microbes को kill करते हैं। Some of the common plant disease caused by the pathogens are listed in the table. अब let's learn about some common plant disease. Plant disease कौन से हैं, कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, and causative pathogen कौन सा पैथोजन है जो इफेक्ट होता है। तो पहला डिजीज का नाम है रूट रॉट्स, ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स एंड फंगी। Wilt, potato, alfalfa and trees, fungi. Blight, fruit trees, vegetable crops. And by bacteria, leaf spot, beans, peas, cotton, etc. ये bacteria yellowing of leaf, barley, potato and sugar beet, and it is because of virus. Food spoilage. Food spoilage is a process in which food deteriorates to a point at which it is not edible for humans. So food spoilage में क्या होता है? फूड जो है इतने इस अमाउंट तक खराब हो जाता है कि वो ह्यूमंस के लिए जो है सही नहीं रहता है। डिफरेंट फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग फूड आइटम्स को अलग अलग वेज से हम जो है स्टोर कर सकते हैं। हाउएवर इफ फूड इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली इट मे गेट स्पॉइल्ड। अगर हम फूड को ठीक से स्टोर नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? खराब हो सकता है। Some reasons are oxidation of food item by air. So कई बार जो फूड आइटम है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर में। Decomposition of microorganisms like bacteria and fungi. So ये जो बैक्टीरिया फंगी डिकम्पोज कर देते हैं हमारे फूड आइटम को। Now let us study how these microorganisms spoil food. अभी कैसे हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। Conditions suitable for the growth of microorganisms on food step. So कुछ जो है कंडीशंस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे फूड पे ग्रो करने का। लेट्स सी। मॉडरेटली वार्म टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर थोड़ा बहुत वार्म होना चाहिए। मॉइस्चर में सबसे ज्यादा ये फैलते हैं। एयर, अगर किसी चीज में एयर लग जाए तो हमारा फूड है वो खराब होने लगता है। साइंस ऑफ फूड स्पॉइलेज। अब कैसे पता चलेगा कि फूड खराब हो चुका है? Some of the indicators that show that the food has been spoiled by the microorganisms are foul smells. Food का smell जो है खराब आने लगता है। Example,
Cooked food in hot weather smells bad if it's keep outside the refrigerator for long. अगर लंबे समय तक फ्रिज से बाहर रख देंगे फूड को तो उसका स्मेल खराब स्मेल आने लगती है. बैड टेस्ट और सोरनेस, टेस्ट खराब हो जाता है. एग्जाम्पल, मेक टेस्ट sour after being spoiled due to the formation of lactic acid by microorganisms. So जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं फूड में, जिसकी वजह से फूड जो मिल्क है वो कैसा हो जाता है, खट्टा, उसमें स्मेल आने लगती है. चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाता है, ब्लू एंड ग्रीन मोल्ड्स ऑन स्पॉइल्ड ऑरेंज. फूड न्यूट्रिएंट्स एंड द साइंस ऑफ स्पॉइलेज. अब क्या क्या फूड न्यूट्रिएंट्स है और कैसे कैसे उनकी स्पॉइलेज का साइन हमें पता चलेगा. प्रोटीन रॉट एंड प्रोड्यूस फाउल स्मेल. अगर प्रोटीन खराब होता है तो ऐसी स्मेल आती है. फैट और ऑयल है तो स्मेल एंड टेस्ट बैड, स्मेल और टेस्ट उसका खराब हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट्स, cooked cereals become marshy and slimy and flour products smell and taste unpleasant. So ये जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है उसमें उसका जो टेक्सचर है वो स्लाइमी हो जाता है और जो प्रोडक्ट है उसका स्मेल और टेस्ट भी खराब हो जाता है. विटामिन और मिनरल रिच फूड जो होता है वो रॉट, फर्मेंट और डीके ऐसी साइंस शो करता है. You can see a few of the items that are spoiled. You can see the pictures. Now consequences of consuming spoiled food. अगर हमने इस खराब फूड को खा लिया तो क्या हो सकता है. Microorganisms that grow on food sometimes produce toxic substances. So ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो भी फूड पे हैं वो कई बार जो टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं. These toxic substances make the food unfit for consumption. और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं ये फूड को अनफिट बना देते हैं हमारे कंजम्पशन के लिए. कंज्यूमिंग सच फूड आइटम्स कॉज एन इलनेस कॉल्ड फूड पॉइजनिंग. और अगर ऐसा फूड खाएंगे तो क्या होगा, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड प्रिवेंट फूड फ्रॉम प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फूड को खराब ना होने दे, उसे प्रिजर्व करें. फॉर प्रिजर्वेशन, आप कैसे प्रिजर्व करेंगे. The process of preserving food from being spoiled by microorganisms is called food preservation. So food को preserve करना, उसे संभाल के रखना ताकि उसमें microorganisms grow ना कर पाएं, इसे ही preservation कहते हैं. Most of the methods involve destroying of microorganisms. So कई सारे मेथड है जिससे हम microorganisms को destroy कर सकते हैं. Present in the food or stopping them from growing again. जो ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स फूड में है उन्हें स्टॉप करके ग्रो करने से. फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग टेक्निक. सो कुछ टेक्निक्स हैं जिसे हम फॉलो करेंगे तो फूड हमारा खराब नहीं होगा. टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर को कंट्रोल रखिए. मॉइस्चर कंट्रोल, इसे भी कंट्रोल रखिए. केमिकल यूसेज एंड फिजिकल मेथड्स. सो इन ऑर्डर टू अचीव द सैटिस्फाइड रिजल्ट समटाइम्स सम more than one method is applied to the food products. So कई बार अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हम एक से ज्यादा मेथड्स को यूज करते हैं फूड को सेफ रखने के लिए. Now let's learn what is temperature control. Low temperature. Low temperature slows down the speed of enzyme reaction and also prevent the growth of most pathogens and microbes that spoil food. So low temperature क्या करता है, जो एंजाइम्स के ग्रो करने की स्पीड को स्लो कर देता है, जिससे जो है जो पैथोजेंस है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो फूड को स्पॉइल नहीं कर पाते. अवॉइड पोस्ट प्रोसेस कॉन्टेमिनेशन. ड्रिंक्स आर यूजुअली बैन्ड टू प्रिजर्व द कार्बन डाइऑक्साइड दैट कीप्स देम फ्रीजिंग. सो हमें क्या करना है, पोस्ट प्रोसेस कॉन्टेमिनेशन को अवॉइड करना है. सो ड्रिंक्स को जो है बैन कर दिया जाता है यूजुअली क्योंकि प्रिजर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो उनको फिजी बनाती है. मॉइस्चर कंट्रोल. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर इज टर्म्ड एज डिहाइड्रेशन. सो अगर हमने फूड में से मॉइस्चर को निकाल दिया तो उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म स्टॉप व्हेन मॉइस्चर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फूड. और जैसे ही हम मॉइस्चर जो है फूड में से गायब होता है तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी ग्रो करना बंद कर देते हैं. डिहाइड्रेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रिजर्विंग मेथड्स. सो डिहाइड्रेशन के कुछ मेथड्स हैं. लेट्स सी व्हाट आर दे.
ट्रेडिशनल मेथड सच एज सन ड्राइंग, सूरज में सुखाना, धूप में सुखाना. कमर्शियल मेथड यूज्ड हॉट एयर इंक्लूड टनल ड्राइंग, रोलर ड्राइंग और स्प्रे ड्राइंग. सो ये कुछ ड्राइंग मेथड्स दिए हैं, इन्हें हम कमर्शियली जब प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक्सीलरेटेड फ्रीज, drying which makes warm air after food has been quickly frozen. Now let's learn some chemical usage. Substances used to check the microbial growth of food item are called preservatives. So वो substance जिन्हें use किया जाता है microbes को grow करने से उन्हें हम preservatives कहते हैं. So chemical commonly used for preservative include salt. So salt को हम use करते हैं as a preservative and it is unique. It has an unique quality that it makes water unavailable for microbial growth. So salt क्या करता है, water को खत्म कर देता है, microbial growth इसकी वजह से नहीं हो पाता है. Salting is often used to preserve आंवला, mango, tamarind, etc. So इन सब चीजों को preserve करने के लिए हम इनमें salt डालते हैं. Salt has also been used for preserving meat and fish for ages. So salt को use किया जाता है meat और fish को काफी time तक save करने के लिए. Next is sugar. Sugar works in the same manner as salt by reducing the moisture content. अब sugar भी क्या करता है, moisture content को reduce कर देता है, thus stops the microbial growth और microbial growth को खत्म कर देता है. Food items like jellies, jams and spices are preserved by adding sugar. So अब इन food items को हम save करके रखते हैं by adding sugar in them. Next is oil and vinegar. You must have seen pickles dipped in oil. Sometimes vinegar is also used in pickles. Oil and vinegar are used in order to lower down the pH below the normal growth range of the most microorganisms. Thus, microorganisms are not available to survive in such an environment. The method of preserving pickle in oil and vinegar is called pickling. So, अब oil और vinegar का use किया जाता है. आपने देखा होगा pickles में means आपके घर में जो अचार बनते हैं उसमें जो है इनका use किया जाता है. क्यों use किया जाता है? क्योंकि ये जो है जो pH level होता है उसे जो है normal से भी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर microorganisms grow नहीं कर पाते हैं. और इस मेथड को हम पिकलिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेशन. इट मींस स्टोरिंग द फूड प्रोडक्ट्स एट द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री टू 5 डिग्री. सो फूड को 0 से 5 डिग्री के बीच में रखने को ही हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं. यू मस्ट हैव सीन योर मदर ऑफन refrigerating all the types of raw and uncooked vegetables in refrigerator. Fruits and all are also stored in refrigerator to prevent them from being spoiled. So refrigeration से क्या होता है, जो फूड है उसे हमें 0 से 5 डिग्री तक रखना होता है जिससे वो फूड खराब ना हो. और हमारी जो मम्मियाँ हैं वो क्या करती हैं, जो रॉ फूड होता है, कच्चा फूड या फिर जो कच्चे वेजिटेबल या फिर पके हुए वेजिटेबल्स उन्हें और फ्रूट्स को फ्रिज में रखती हैं जिससे कि वो खराब ना हो. नेक्स्ट इज फ्रीजिंग. It is a term as a technique of storing the food items at 18 degrees Celsius. तो ये जो है एक टेक्निक है जिसमें फूड को 18 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है. There are a variety of commercial techniques of freeze food items. So बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे फूड आइटम्स को फ्रीज किया जा सकता है. High temperature. Heat kills the microorganisms that cause food spoiling. अब heat क्या करता है, microorganisms को मार देता है जो food को spoil करता है. Some of the heat processes also destroy foods and preservation methods that include high temperature include. So कुछ preservation methods हैं जिसमें high temperature को use किया जाता है. The first is pasteurization. It is a method that involves the combination of time and temperature which is suitable to destroy active pathogens and spoilage bacteria in a particular food product. Example, milk is heated at 70 degrees Celsius for 15 seconds and then suddenly chilled and stored. A few harmful bacteria may still be left after pasteurization. So the milk may still get sour within a few days. So पहला जो प्रोसेस यहाँ पे है हीटिंग का वो है पास्चराइजेशन. अब इस
अब आपने जो भी आप मिल्क यूज करते हैं, जैसे अमूल हो गया या किसी भी ब्रांड का जो मिल्क आप यूज करते हैं, वो पास्चराइजेशन के मेथड से ही रखा जाता है। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, जो मिल्क होता है उसको 70 डिग्री तक जो है हीट किया जाता है 15 सेकंड के लिए, और उसके बाद उसे चिल करके स्टोर कर लिया जाता है। तो काफी सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो मर जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं जिससे वो मिल्क कुछ दिनों में खराब हो सकता है। Next is sterilization. Sterilization is termed as a process of destroying all the microorganisms at the temperature above 100 degrees Celsius. This method is often used for various food items. So अब sterilization में क्या होता है, जो चीजें हैं उन्हें 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल किया जाता है, जिससे जो भी बैक्टीरिया या फिर जर्म्स है वो सारे मर जाते हैं, और काफी सारे फूड आइटम्स है जिसमें ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट. A higher temperature than pasteurization is used in this method. Thus, it involves killing of all the bacteria present in the food item. Example, ultra heat treatment milk is produced using this method. Though the shelf life of ultra heat milk is much higher, the flavor of the milk is also. So, ये जो ultra heat method है, इसमें जो milk है उसको 70 डिग्रीज मीन जो पास्चराइजेशन पे जो डिग्री यूज की गई उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पे जो है इसे गर्म किया जाता है और फिर जो है स्टोर किया जाता है। सो इससे क्या होता है, जो टाइम ड्यूरेशन है मिल्क का वो काफी लंबा रहता है और काफी लंबे टाइम तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ओमिक हीटिंग. It involves using the high voltage electric current pass through food and destroy microorganisms causing food spoilage. So, इसमें क्या है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया जाता है, फूड से पास किया जाता है, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो खत्म हो जाते हैं. नेक्स्ट इज कैनिंग. कैनिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ हीट एट द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड फॉर द प्रिस्क्राइब्ड टाइम टू डिस्ट्रॉय एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो कैनिंग में क्या होता है, जो चीजें हैं उसे हीट किया जाता है एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे, जिससे जो भी एंजाइम्स हैं एक प्रिस्क्राइब टाइम तक जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो भी एंजाइम्स है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. दिस प्रोसेस आल्सो इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर टाइट सीलिंग ऑफ कंटेनर. सो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है और जो कंटेनर है उसे एयर टाइट सील कर दिया जाता है. द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड इन दिस मेथड. और ये जो वेजिटेबल्स है या जो बाकी चीजें यहाँ लिखी गई हैं इन्हें इसी मेथड से प्रिजर्व किया जाता है काफी लंबे टाइम के लिए. नेक्स्ट इज फिजिकल मेथड. अब ये तो हमने पढ़े कुछ मेथड, अब हम कुछ फिजिकल मेथड्स पे आ जाते हैं. फिजिकल मेथड्स आर मोर इन यूज देन these days in order to keep microbial growth away from the food products. Some such method are modified atmospheric packaging. The air around the food product is modified in such a manner that the nitrogen content is increased in it and oxygen content is reduced, which ultimately slows down the growth of many microorganisms. So अब जो है modified packaging में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है, नाइट्रोजन को इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है इसमें ग्रो नहीं कर सकते. Some fruits and vegetables are preserved by this method. So here you can see the picture of modified atmosphere packaging. Next is vacuum packaging. Vacuum packaging involves the removal of oxygen which inhibits the growth of anaerobic bacteria but does not prevent anaerobic from growing. So अब इस केस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है और इन पैकेट्स को सील कर दिया जाता है, जिसकी वजह से anaerobic बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो नहीं कर पाते हैं. Here you can see the picture of vacuum packing. Next is food irradiation. It is rarely used method of preserving food, and in this process ionized radiation is used to destroy microorganisms. Irradiation does not make the food any more radioactive than it is naturally. Irradiated food is used for astronauts and patients possessing very weak immune system. The major drawback associated with this process is that it may lead to the deficiency of vitamin C in the body.
सो ये जो फूड टेक्निक है, जो फूड प्रिजर्विंग टेक्निक है, ये बहुत कम यूज होती है और इस केस में क्या होता है, जो फूड है उसे जो है रेडियो एक्टिव इरेडिएशन किया जाता है, जिसमें रेडियो एक्टिव जो है लाइट्स को पास ऑन किया जाता है, जिससे जो है फूड के अंदर के जो जर्म्स उन्हें मारा जाता है। ये फूड जो है मेनली जो है एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं, पेशेंट्स के लिए होता है, जिसमें जो है विटामिन सी काफी कम होता है और यही इसका ड्रॉबैक है कि ऐसे लोग ही इसे फूड को यूज कर पाते हैं जिनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है। Now children, let's recall what we have learned. Microorganisms are so small that they cannot be seen with naked eyes. They are classified into 4 major groups: bacteria, fungi, protozoa, and algae. Viruses are also considered as microorganisms. They reproduce only in the body of hosts like plants, animal, bacteria, etc. Microorganisms can survive under all types of environment. Microorganisms are also found inside the body of animal, including humans. Microorganisms are useful in food production, manufacturing medicines, agriculture, cleaning the environment, and also common staples and food sources. Microorganisms cause diseases in human beings, plants, and animals, while others spoil food and cause food poisoning. Most of the preservation method include destroying of microorganisms present in the food or stopping them from growing again. Food preservation method involve the techniques such as temperature control, moisture control, chemical usage, and physical methods. Food irradiation is very rarely used method of preserving food, and in this process the ionized radiation is used to destroy microorganisms. Now let's answer this question. Name 2 antibiotics. So आपको 2 antibiotics के name लिखने. Name 2 useful microorganisms. So lactobacillus is a useful microorganism. You can write down the second one here. Name the methods of food preservation that involves the technique of temperature control. So 2 मेथड लिखने हैं फूड प्रिजर्वेशन के, जिसमें जो है टेम्परेचर कंट्रोल को यूज किया जा रहा है. Name 2 microorganisms that are used in the as a source of food. What do you mean by UHT and how does a vaccine work? Vaccine कैसे work करता है? You have to write all these questions. So children, I hope that you have understood the chapter. You have to do the exercises that is given to you as homework. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay later.